Before starting, I would like to give a brief introduction about Pooja ma'am. So she is the chairperson of Abeer Life Skill Welfare Society. She is a dynamic motivational speaker who compels the student as well as management personnel with blinding excellence and cajoles her listening into steering their ship in the right and correct direction. Dr. Pooja ma'am is known for conducting the interactive session, classes, and lectures that have warm and amiable ambiances. Her speeches are catchy and informative, but yet simple. She is a doctorate in emotional intelligence, a postdoctorate in psychology. She is also a law graduate and has been in many certification courses meant for psychology counselors. Ma'am is the chairperson and she is an active member of the Indian Institute of Training and Development and a member of Management Association and other national and international bodies related to psychology. She delivers her speeches and conducts her lectures and workshops based on her own experience, and she forms a connection with every person in the room by gripping their attention. Dr. Pooja ma'am delivers the importance of living a purpose life, driven life via her speeches, a lesson she learned firsthand. Dr. Pooja Mehta has delivered opulent and remarkable lectures in very renowned universities such as Institute of Chartered Accountant of India, Bhopal, Institute of Company Secretaries of India, Bhopal, CRISP Bhopal, MPCon Bhopal, and various schools and colleges in Bhopal, including the World Way International School and IS Public School, Sharda Vidya Mandir, BNS College, IES College, Allen Medical College, International Public School, and Sharda Patel. The main area of interest about the ma'am, I must tell. Self-awareness, positive thinking, international skills, stress management, conflict management, confidence building, goal setting, team building, anger management. These are the main areas of on which the ma'am has a great command to deliver a lecture. And ma'am has speeches mostly put stress on the self-motivation, confidence, conflict management. Ma'am has also delivered speeches on parental skills, women empowerment, and she occasionally conducts workshops on personality development skills. Aside from this, she is having so many delivered striking speeches on the following topics I have told you. So with these good words and with such a vast accomplishment, I would like to invite you, ma'am, on the behalf of entire SAGE group and SIRT Pharmacy. Now the audience is yours. Thank you, Priyanka ma'am. First of all, I would say first thanks to the management of SAGE Group, CMD sir, Sanjeev Agarwal sir, Prashant Jain sir, Vice Chairman sir, Ms. Shivani Agarwal, Executive Director, and Dr. R.B. Goswami sir, Director sir, and special thanks to Priyanka ma'am and Surbhi ma'am for coordinating everything from the last, this is the second day. So thank you very much. And बहुत सारी तारीफों के लिए प्रियंका मैम, thank you very much. तहे दिल से thank you. And before I start my session, I just request one thing. I see, as you have seen that it is written activity. If you have seen your whole, your brochure, it is written emotional maturity and it is written activity. So as I want, it's a very interactive session. मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, हम यहाँ बातें करने आए हैं और जो थोड़ा बहुत कहीं कुछ मिस है उसको वापस से जगाने आई हूँ. So I want only two things. First, your video should be on, and second, you should have a smile on your face. I don't want anything because I don't want, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ. Thank you Asha ma'am, thank you very much, and I expected था the first person जो सबसे पहले मेरे कहने पे वीडियो ऑन करेगा वो आप ही करेंगे. Thank you ma'am, and कल से आप काफी एक्टिव हैं. Seriously, thank you. I request all the participants, please, Nandini ma'am, Phul Singh sir, everybody, please, Monali ma'am, Amarpali ma'am,
Sachin sir, I want please switch on your videos, and I just want, thank you Manoj sir, thank you very much. I just want a beautiful smile on your face. इतना इमोशनल इंटेलिजेंस सुन लिया, इतना स्ट्रेस को रिलीज कर लिया, तो एटलीस्ट आई वांट टू सी, यस थैंक यू अमरपाली मैम, प्लीज आई वांट सी यू ऑल आर फैकल्टी मेंबर्स, some of the other place, so सब बहुत ज्ञानी है, everybody has that ज्ञान. तो मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, it is a very simple interactive session कि my voice is clear? See, I tell you, मेरा सेशन में सिर्फ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है कनेक्शन और एक होती है बॉन्डिंग. सो फॉर दैट कनेक्शन एंड बॉन्डिंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, एंड स्माइल भी आ जाती सर तो बहुत अच्छा रहता. थैंक यू सर. यस, थैंक यू अर्नव मैम, थैंक यू वेरी मच, आपके बाल रियली बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू. सिर्फ कनेक्शन और बॉन्डिंग से ही शायद हम अपने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, और इतने सारे लोगों ने मेरे कहने पे वीडियो ऑन किया, एंड दैट इज सीरियसली थैंक यू वेरी मच. अभी कुछ लोग रह गए हैं, सो आई एक्सपेक्ट कि जैसे जैसे मैं और क्लोज जाऊं और आप मेरे और आपकी कनेक्टिविटी बॉन्ड और बने. थैंक यू साधना मैम, थैंक यू वेरी मच. हेलो मैम. हाय मैम, हाय हाय हाय. एक्चुअली व्हाई आई एम फोर्सिंग यू कि कभी हम जिंदगी में दोबारा कहीं टकराएं तो एटलीस्ट एक दूसरे को पहचान तो पाए. नहीं तो कोई मैडम आई थी, बोल के चली गई, और मैंने काली खिड़की देखी, ना मैंने उनको देखा ना उन्होंने मुझे देखा. तो प्लीज थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल. थैंक यू. एंड अच्छी वाली स्माइल, क्योंकि मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, आई वांट अ ब्यूटीफुल स्माइल. थैंक यू निशा मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल स्माइल. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम. I want you to close your eyes. Obviously, कोई meditation नहीं करवा रही हूँ. Just close your eyes and remember, leave all the negativity aside. Remember all the positive things you have in your life. बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम बार बार उन्हीं चीजों, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग. सो आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, जस्ट क्लोज योर आईज, रिलैक्स, leave all the negativity aside, remember all the positive things you are blessed with. Remember, please leave all the negativity aside, remember all the positivity things you have in your life. अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपना वीडियो नहीं ऑन किया, so I request कि अगर मैं थोड़ा सा भी आप लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, ये तो मेरा सिंपल टेक्निकल है कि जैसे जैसे आप मुझसे कनेक्ट होते जाएंगे अपने वीडियोस ऑन करते रहना. अगर वीडियो ऑन नहीं किया तो मैं समझूंगी शायद मैं आपको अच्छी नहीं लगी. थैंक यू श्रीधर सर, थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अमित सर. Just close your eyes and just relax and feel the positivity. All the negative thing leave aside. Just remember all the positive things you have in your life. There are many things we are blessed with. Open your eyes. So, कैसा लगा? स्माइल आ गई तो आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा लगा. अगर स्माइल नहीं होगी फेस पे तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ मजा नहीं आया. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल स्माइल. हाँ, आई नो आफ्टर दिस सेशन आप लोग फीडबैक में लिखेंगे कि बाकी सब तो ठीक था, ये बहुत दर्द होने लग गए, क्योंकि पूरे टाइम हंसना कंपलसरी था. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल स्माइल. आई टेल यू वन थिंग, हम सबके अंदर वी हैव टू सेल्फ. एक वी हैव इनर सेल्फ एंड सेकेंड वन इज आउटर सेल्फ. If we talk about outer self, it is full of judgment, criticism, expectations. लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा. We always want, notification, justification, validation. बाहर की दुनिया. And inner self, lack of confidence, lack of self-esteem, lack of self-love. And this is the reason of our emotional stress.
बिकॉज हम अक्सर बाहर देखते हैं, हम अंदर नहीं देखते. वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट आवर हैप्पीनेस इन द आउटर वर्ल्ड. लोग, छोटा सा एग्जाम्पल, इफ वी गो फॉर एनी डिनर, वी क्लिक द फोटो एंड पोस्ट ऑन एफबी एंड देन चेक किस किसने कमेंट किया, किसने किसने कॉम्प्लीमेंट किया, मैं कैसी लग रही थी, मैं अच्छी लग रही थी कि मैं नहीं लग रही थी. एंड ये सारी चीजें बार बार हमारे मेंटल स्ट्रेस को परेशान करती है. आई टेल यू, आई नरेट अ वेरी सिंपल शॉर्ट स्टोरी. एक छोटी सी बूढ़ी अम्मा की एक सुई गायब हो जाती है. वो अपनी सुई ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, उसे सुई नहीं मिलती. एक लड़का वहां से क्रॉस होता है. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. लड़का सुई ढूंढता है उसके साथ, वो भी ढूंढने लग जाता है. वो पूछता है, अम्मा सुई कहाँ गिरी थी? तो वो बोलती है, वो मेरी छोटी सी झुग्गी है, छोटी सी झोपड़ी, वहां पर गिरी थी. वो भी ढूंढने लग जाता है उसके साथ. कहता है, अम्मा एक सेकेंड, जब वो अंदर गिरी थी तो आप बाहर क्यों ढूंढ रही थी? देन शी सेज, अंदर बहुत अंधेरा था इसलिए मैं बाहर ढूंढ रही थी. अंदर बहुत अंधेरा था इसलिए मैं अपनी सुई बाहर ढूंढ रही थी. एग्जैक्टली द सेम गोज विद अस, कि हमें हमारे अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस परेशानियां हैं कि हम अपने आप को खुश रखने के लिए हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं. हम बाहर की दुनिया पे अपनी खुशियों को डिपेंड करते हैं. सो फॉर एटलीस्ट फॉर माय सेशन आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग, please try to find yourself. Only one simple thing. मेरे कहने पे इतने सारे लोगों ने वीडियो ऑन किया जिनको शायद सुरभि मैम और प्रियंका मैम ने भी नहीं देखा था. आज इस सेशन के कारण सबने सबकी एक दूसरे की भी शक्लें देख दी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक दूसरे को भी देख लिया. बट स्टिल अभी बहुत सारे लोग बचे हैं. थैंक यू नितिन सर वीडियो ऑन करने के लिए. सो आज एटलीस्ट मैं जब तक आप लोगों के साथ हूं, आई वॉन्ट यू to just focus on your inner self. बाहर की दुनिया को साइड में छोड़ देते हैं. Okay, now obviously we will have an interactive session. मैं बोर नहीं करूंगी, कोई पीपीटी नहीं दिखाऊंगी, बिल्कुल मत चिंता करिए. When we talk about emotional maturity, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस सुना, बट जब हम इमोशनल मेच्योरिटी पे आते हैं, what does emotional maturity means? Basically emotional maturity is handling of your emotion to deal with life situations. कैसे हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस पे अपने इमोशंस का यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट इमोशनल मेच्योरिटी इज. मेच्योरिटी मीन्स व्हाट? समझदारी. यार ये इंसान बहुत मेच्योर है, दैट पर्सन इज वेरी मेच्योर, ही टेक्स डिसीजन इन अ वेरी करेक्टिव मैनर. व्हाट इज मेच्योरिटी? This is maturity. How you deal with your emotions, how you deal with your life situations, that is emotional maturity. Today I'm going to give you 5 simple questions. 5 simple questions, and yes, you have to write the answers, and yes, I want you to speak on that. Why? I tell you one thing, this is introspection. You take 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, but try to find your inner you. Inner you. सिर्फ लिखने के लिए प्लीज मत लिखिएगा. इन सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको ढूंढने से. और हाँ, एक चीज और, जब आप उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रहे हो ना, तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए. यस, थैंक यू खुशी मैम. मुझे बार बार बोलना पड़ेगा क्या आपको हंसने के लिए? मतलब मुझे बार बार बटन प्रेस करना पड़ेगा. एंड सीरियसली मैं हंसना तब बंद करती हूँ जब मैं बिस्तर पे सोने जाती हूँ. बिकॉज सिंपल थिंग, अगर वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी. आई बिलीव इन वन थिंग, लाइफ में सब कुछ ईजी है इफ यू आर पॉजिटिव एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर हैप्पी. ओके, सो सिंपल 5 क्वेश्चंस आते हैं. Try to find out the answer, try to find out your inner view, and yes, you have to give the answer. You have to give the answer. लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे जज करेंगे, अभी तक तो किसी ने मुझे देखा नहीं था, लोग मेरे बारे में थॉट प्रोसेस बनाएंगे. नो, ऐसा कोई भी थॉट्स हमें यहाँ पे नहीं रखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिकवर फ्रॉम योर फेलियर? आप अपने फेलियर से कैसे रिकवर करते हैं? How do you recover from your failure? आप अपने फेलियर से रिकवर कैसे करते हैं? Second question, how do you respond when your co-worker challenges you?
अक्सर हम जहाँ जॉब करते हैं तो बहुत कंपटीशन वी यूज टू फेस एवरी डे. सो अगर कोई आपका कोवर्कर आपको चैलेंज करता है तो आप कैसे उससे रिस्पॉन्ड करते हैं? When have you felt demotivated? What did you do to overcome this? When you feel demotivated, what did you do to overcome this? जब आप थोड़ा सा भी demotivated feel करते हैं तो वो आप क्या करते हैं जिससे आपको वापस से आप अपने आप को खड़ा कर लेते हैं? Fourth, what kind of a behavior makes you angry or annoyed? कौन से ऐसे behaviors हैं, क्या आपको नहीं पसंद आता जिसके कारण आप दुखी और परेशान हो जाते हैं? How would some of your closest friend describe you? ये तो हमेशा ही चिड़चिड़ करता रहता है, हमेशा ही परेशान रहता है, या अरे wow, what a positive person, confident person. So how would some of your closest friend describe you? Simple 5 questions, and yes, ऑब्वियसली सुरभि मैम ने मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दिया है तो सब लोगों सब तो आंसर्स नहीं दे पाएंगे, बट यस एटलीस्ट जिन्होंने मेरे कहने पे वीडियो ऑन किया है उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी दे शुड स्पीक. एंड प्लीज आप लोगों के पास टाइम है जैसे जैसे, और जब तक सबके वीडियोस ऑन नहीं होंगे मैं जाऊंगी भी नहीं, इसलिए अब इफ यू वांट कि जल्दी खत्म हो जाए और ब्रेक मिल जाए तो वीडियो ऑन कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. And I want you to write the answers, and then obviously Asha ma'am तो बोलेंगी ही बोलेंगी, that is for obvious, sure and yes, expected है कि सबसे पहले आप ही बोलेंगी. Okay, ma'am. For the first question, that is, how do you recover from your failure? Ma'am, just a minute. I think ma'am is asking for the second question. How do you respond when a co-worker challenges you? I'm giving you time. You can write all the answers first. I'm giving you the time. How do you respond when a co-worker challenges you? If you want, I can repeat all the questions. Am I audible? Is the audio clear? Yes, yes, yes. It is audible. First question: how do you recover It is from your? Actually, after if there is a failure, I take it as a learning lesson, and what I do is I just see, introspect what was the mistake that I did due to which I had to face failure, and I improvise on whatever shortcomings were there in that, whether it is work related or maybe even in the personal. That is my answer for the first question. And if my co-worker challenges me, the second question, I hope I'm audible because there was some network issue you're here. audible. Is Ma'am, it you're clear, audible. ma'am? Yes, ma'am, you are Okay, audible. ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. And for the second one, like if some co-worker challenges me, then definitely I'll accept it in a positive way, because if I take it in negative, that the person is thinking that I will not be able to face the challenge, it won't be a good thing, because in life we have a lot of challenges to face. So definitely a co-worker's challenge will be taken in a positive sense. Whether I lose or not doesn't matter. The important thing is to face that challenge. And what I do when I feel demotivated, yeah, that is often it happens. Then I look at things which motivate me, because maybe two things demotivate me in life, but there are various reasons to feel motivated, and I motivate myself from those reasons. These are the reasons for which I should not feel demotivated. I try to overcome it that way. And regarding how would my friends describe me, my friends would describe me as a very outspoken, honest person. And if they want a frank opinion about anything, I'm always there. And of course, a strong person who isn't afraid to face anything. That's it, ma'am. Great, ma'am. Great. Yes. Next. Next. कौन बोल रहा है? Is going to come next. Yes, Khushi ma'am, please. I'll answer the fifth question first. How would Okay. some of my closest person describe me? I guess my elder daughter is my closest person, my friend, and she describes me as her confidante. Like she's a teenager, but she always comes up to me with everything. Where she could confide everything. So I guess I am reachable. That
how I can describe myself. Okay, how do I recover from my failures? Of course, I get sad initially, but yes, I try to, find the reason and then, try to overcome it. If it's related to study, so I would, pursue it. So, learn from it and, recover it. So that's how most of all, something that helps me a lot, for answering all these questions, meditation. I do it every day. So meditation is something that always, helps me in, recovering from all the negativities that I have. Okay, how would I respond when my coworker challenged me? Um, I always accept the challenge, but then, see, challenge is something that makes you, do something more for yourself, add value to yourself. So it's a positive thing. And when I feel demotivated, what do? I talk to my daughter or my, somebody who's very close to me. I would talk to them. I would, you know, tell all my problems. Okay, this is happening. But then, ultimately, I find the solution in myself only, because when I would sit, I would meditate, I would reflect on myself, and then I find things to, get motivated. And what kind of a behavior annoys me, when somebody tries to act very smart, that annoys me a lot. Because I am a very honest person. I don't fake. So if somebody is fake and just try to act very smart, that annoys me. So I guess I've answered all the 5 questions. Great, ma'am. You're a very positive person. Great. Thank you. Next. I want you all to speak because I want this session to be very interactive. So please, I want Shridhar sir, Aarti ma'am, Amarpali ma'am, Nitin sir. Please switch on your videos and I want you to speak. Full Singh sir, Sachin sir. Yes, Shridhar sir. Yes, ma'am. For the Please. first question, how do you recover from your failure? I usually try to learn and analyze what went wrong with a particular situation or whatever, and try to understand and take some corrective measures if a similar thing happens in the future. So it's a line: learn, understand, and analyze, and take some corrective measures. And for the second question, how would you respond if a coworker teases you? If it's really worth implementing or the challenge is worth accepting, I would definitely love to accept it and move ahead and try to implement it in the best possible manner. If it is just meant for, say, killing time or just as the name indicates for teasing, I would rather ignore and keep moving further in whatever the work I am assigned with. Next is, how do you get demotivated, and what do you do when I get demotivated? I usually discuss with my close friends or colleagues to get a different perspective, to know what went wrong actually, and I try to analyze myself or do some workouts, or maybe I watch some TED talks to narrate Hindi mein, like example Sandeep Maheshwari ji, yeah, Vivek Bindra. I mean, I usually go through some good motivational talkers, or say some TEDx talkers, so that it gives me some amount of instant energy as it is required. And the last one, what makes you, last but one, what makes you angry or annoyed? Some repetitive issues or petty issues at home, which keeps recurring at regular intervals of time, for which you're not able to find some solutions yet. And when it comes to professional aspects, say we try to see many changes in the system, which sometimes are beyond our control, to bring in some changes. We keep giving suggestions. Some things work, some don't work, and other comes recognition, appreciations, promotions, etc. These are things what matters at the professional front. Last one, how do my close friends describe? Some say I begin very slowly, do the works at a slow and a steady rate. I'm a good friend. I advise, especially for the beginners who join my a kind of a work that I'm doing. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. So how was your experience with all these sessions? Your experience, Shridhar sir? Ma'am, it's really going good, madam. Even in the morning session, I was really inspired. Like, we never even
as one of our participants was telling, usually these online sessions, we generally tend to switch on our mobiles and keep doing some parallel works. But as such, I mean, I and my colleague, we have even narrated, I mean, we have noted down everything, and it was really holding the audience attention a lot. We never even skipped a single minute, madam. It was a really good thing from your side, madam. From your side and Professor Nitin sir side. Thank you, sir. Thank you very Thank you. much. Next. Yes, ma'am. Next, who's going to speak? Deepti ma'am, Ram sir, Nitin sir. Ma'am, smile se kaam nahi chalega. You have to speak. Okay, and I'll quickly take the opportunity to talk about 3 things that I could note. So first was about the failure, that what do you do when you fail? I feel personally that failure and success are a part of the effort that you make in. So the effort itself is a winner in itself, you know, in its whole. So I take failure as the way it comes to me, and I try not to repeat that failure again, not to put the effort into a wrong task or in a wrong direction, and move ahead. Then about the co-worker challenge. So co-worker challenge, I have a policy that when somebody tries to challenge me, I try to analyze the position of that person holds in my life, in my work area, and I try to sleep over it so that I relax my mind and come back to it again, whether it is worth accepting or not accepting. So when I'm confused, I sleep over it. And then I come back to it with a fresh mind and decide if it is worth accepting, I will accept it. I will try to excel it, giving the other person an equal opportunity to take his challenge on me as his challenge, my challenge on him. So that is my way of doing it. And then thirdly, about demotivation. So being demotivated, I think it's a when you're doing something, you're putting in your effort, whether in personal life or in regular life. Like I have a 3-year-old daughter. So I feel demotivated at times when, I don't see her listening to me, not being obedient to my instructions. And once I'm back home, I see all the messy house. So I get demotivated if she didn't listen to me. So, but then I feel maybe that's a part of the whole system, and you have to move on. You have to go ahead in life. So that's what you have to convert demotivation into motivation. So I meditate, I exercise, and move back. You're a very emotional person, na ma'am? Yeah, I am. You're a very emotional person, seriously. But yes, of course, one thing, because as I'm a psychologist, I can read the faces. So one thing I can judge कि पहले तो बहुत ज्यादा इमोशनल थे, अब तो फिर भी you are, you know, I'm balancing life. Yeah, I'm balanced. You are trying to, balance the life and practicality. I take things very personally, professionally and personally, in personal life, professional life. But I think I as a human being feel कि अगर आप कोई चीज दिल से नहीं करोगे, चाहे वो आपकी personal life हो, चाहे professional life हो, you will not be able to. So whatever I do, I try to do as if it's mine. और आप बहुत दिल से करते हो. Yeah, correct. Because that's how it is. I believe. Sense of responsibility बहुत ज़्यादा है आपके अंदर. Means like कुछ भी दिया है काम तो it's like करना ही है. So today my husband gave me a task that I have to go and take the counseling session at one of the schools of my daughter, and I have to make sure that she gets admitted. So I took that as a challenge that he's told me, so I have to do it. So I gave my best to it. Great, ma'am. Great. Nice talking to you, ma'am. Great. Thank you very much. Next. ये इतनी प्यारी सबके चेहरे पे स्माइल है, उसके लिए सीरियसली थैंक यू वेरी मच. एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें और प्लीज बोलें. नोबडी सी आई टेल यू वन थिंग, हम लोग कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, एंड हम जब सेशंस लेते हैं तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि बच्चे हमें रिस्पॉन्ड करें, दे लिसन टू अस एंड दे गिव आवर आंसर्स. तो एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आल्सो वांट कि अगर डर के बैठ जाएंगे और हम नहीं बोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली ना मजा नहीं आएगा. दिस इज अ इंटरैक्टिव सेशन. तो हेमंत सर, अमरपाली मैम, नितिन सर, आई वांट कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन करें. साधना मैम आप आई थी और चली गई. आई वांट नंदिनी मैम, प्लीज आप लोग अपने वीडियोस ऑन करें. मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा मुझसे कनेक्ट करने के लिए. इतना टाइम आप लोग लेंगे तो नेक्स्ट सेशन कैसे स्टार्ट होगा? यस, हेमलता मैम, यू वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am, please. Thank you, ma'am. Ma'am, unmute. Please unmute yourself.
Good evening to one and all. Good Sorry, evening. good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Coming to the last question, the fifth question, how the colleagues, the subordinates, they look at me is, of course, they are very happy about my leadership as I'm working as a dean of one of the engineering colleges. They're very proud under working under me. They always say that she's a wonderful lady, being in a very good position. Also, she always treat us equally, irrespective of anything, whether it can be a professional or a personal. I try to be as much friendly as possible. And I also see to that I just mingle with each and everyone, and they, of course, they're happy about my working qualities as well. That is one thing with regard to the subordinates. And of course, with regard to the first point, like if I'm demotivated, something like that. So I just express my feelings at that point of time, what situation I have undergone, that I express even with my colleagues or with my family, friends, or with my husband, whomever I feel that at that point of time I can easily connect. I express my feelings, and still, if I'm in stressed mode to a large extent, I start crying. If it is a too much big issue, like I start crying, and of course I express my feelings at that same point of time, and I make myself little light hearted. At that point of time I feel myself little okay, okay, now I am able to manage things in such situation. So I just, first of all, my intention is I express whatever it is there. I never keep it in my mind, I never keep it to myself. I express to all my friends, or to whom I can feel that they are very close to me, to whom I can trust. With such people, I express my feelings. And coming to the uh, first question, can you just read the first question, ma'am, please? How do you recover from failure? Recover from failure. Yeah, this is the answer which I just wanted to express. Like if I'm facing any sort of failure, of course, I take that as a challenge, and I never get disappointed. Of course, let me, I think I have gained some experience from that. Even if it is a failure, no issues. Let me try in a better way for the next time. That is what I just look into. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes, Priyanka, ma'am, you want to speak? Yes, ma'am. Please, Good ma'am. Thank you very much. Ma'am, unmute yourself. Unmute yourself. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, all the 5 questions, I will correlate at one point. As you said, you can define in one word also. Yes. That one word is personality development, actually. The well-being of the person. Because the failure, the immaturity or maturity, or you can say the success or growth, these all leads to the growth of a person. See, like when I will lead to like declining of my phase, it means there is something called as failure, right? Like from the very beginning, in the early age, I got married. When I was studying in graduation first year, I got married. And in the my hello, ma'am, could you hear me? Yes, yes. Now I can hear you. Sorry, ma'am. So in It's okay. in the beginning of my MBA, I was blessed with my daughter. So you can say my life is completely full of challenges. But still, I'm doing my job and I'm studying PhD and everything. So for me, I thought that this all question was a positive question. I can relate it to the positivity of a person, which can enhance the personality, the development and growth of a person. So this question is really good. And your daughter is very cute. Hello. Hi, Thank baby. you. God bless you, bacha. I God was bless you. so bonding like a friend. Yes, she's very cute. God bless you. God bless you, bache. God bless you. Thank you, Priyanka, ma'am. Thank you very much. Anybody you, wants ma'am. to speak, or I should continue? Anybody else? Anybody wants to say something? Okay. बीच में भी अगर लगे आपको तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने बोली है वो अपना वीडियो ऑफ करके अपने चेहरे की स्माइल गायब कर दें. आशा मैम, वीडियो ऑन.
खुशी मैम स्माइल. It's not like that, ma'am. I'm smiling. Yeah. I'm Very just good, ma'am. smiling after seeing you because you are smiling in such a with glow like. Thank you, Deepti ma'am. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you, Shridhar sir. Okay, so I'll continue with the topic. अभी सबने अपने आप को थोड़ा बहुत जाना एंड कुछ ने बोला कुछ ने नहीं बोला बट ठीक है आई विल वेट मे बी पॉसिबल कि थोड़ा थोड़ा हम लोग कनेक्ट करते जाएं. नाउ आई विल शेयर सम ऑफ द बेसिक टिप्स ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी. बेसिक टिप्स इफ पॉसिबल. दीज आर द वेरी 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 सिंपल थिंग्स. हम सबको पता है बट कहीं ना कहीं हम अपनी बिजी लाइफ पे स्ट्रेसफुल लाइफ में हम चीजों को भूल जाते हैं. तो इफ पॉसिबल राइट इट डाउन, अदरवाइज दिमाग में भी आप ये रख सकते हैं. इट हार्डली मैटर्स. The first important thing, the first important tips to develop your emotional maturity is start taking responsibility. Start taking responsibility. What we usually do is we always play a blame game. Maturity means not to blame others. Basically, it is to take a stand. Emotional stability helps us to take responsibility. Life के बहुत बड़े बड़े decisions होते हैं जो हम शायद maturity ना होने के कारण हम नहीं ले पाते. तो it is very important to take the responsibility. We should be strong enough to take a stand. It is very important. The first important thing is if you are mature enough, if you're emotionally mature enough, you have to take the responsibility. The first important thing is you have to take the responsibility. The second point is showing empathy. हमारी लाइफ की एक बहुत बेसिक गलती होती है. हम अक्सर अपने नजरिए से दूसरे की लाइफ को देखते हैं और उसके बाद अपने assumptions बनाते हैं because we expect a lot. और हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा सोचा, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं करा, मुझे कितना हर्ट हो रहा है. बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट. वी शुड ऑलवेज put our shoes in some others shoe. It is very important कि हम दूसरों के नजरिए से अपने नजरिए से ये सोचने की कोशिश करें कि लाइफ दूसरे की उस सिचुएशन में कैसे होगी. हम सिर्फ अपने बारे में सोचकर दूसरे को जज करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एम्पैथी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो एम्पैथी. थर्ड इज admit your mistakes. अक्सर this is the biggest point. अक्सर हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं. We never admit our mistake. We always argue, but we never accept our mistake. Please, maturity is accept your mistake and rectify the situation. बहुत आसान से, बहुत easily we can rectify all these situations. सिर्फ क्या चाहिए? एक कॉन्फिडेंस ही चाहिए. वी ऑलवेज वांट दैट कॉन्फिडेंस इन अवरसेल्फ. सारी सिचुएशंस हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं. बट व्हाट हैपन इज जब हम इमोशनली स्टेबल नहीं होते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता लाइफ की सर्कमस्टांसेस को फेस करने का. सो प्लीज एडमिट योर मिस्टेक. आज से कभी भी आइदर इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, मेक इट अ पॉइंट. कभी भी कुछ भी हुआ, प्लीज एडमिट योर मिस्टेक. और सी वन थिंग, आई टेल यू वन थिंग, बहुत सारे यहाँ पे मदर्स हैं. सिंपल वन वर्ड सॉरी, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड सॉरी कैन डू वंडर्स. बट वो सिर्फ एक ईगो आ जाती है कि मी ऑन अ सीनियर पोजीशन, मी एज अ मदर आई कैन से सॉरी. प्लीज स्टार्ट सेइंग दिस वर्ड सॉरी. अगर आप सॉरी बोल देते हैं तो आप देखो कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी सॉर्ट हो जाती हैं. तो प्लीज यूजिंग दिस वर्ड सॉरी, इट कैन डू वंडर्स. Fourth important point is emotional maturity mean being honest about your feelings. अक्सर ये देखा गया है, normally it happens कि हम कभी भी अपनी फीलिंग्स को दूसरे से शेयर नहीं करते. ऑब्वियसली हमें लगता है कि पीपल विल जज अस. हम परेशान हैं या हम अकेले हैं या हम दुखी हैं. why we don't share our feelings? दूसरों से कह दें. मैं दूसरों मीन्स ये नहीं कह रही कि हम दुनिया भर में बोले, लेकिन we have 2 or 3 people in our life, at least we should share our feelings. because end of the day वो जो अकेलापन होता है, loneliness, वो loneliness ही सारी चीजों की सबसे बड़ी
बीमारी का सबसे बड़ा कारण है दैट अकेलापन. तो प्लीज feel free to share your feelings if you have any problem in your life. Talk to your friends, talk to your family members, but please talk. Like simple, I tell you one thing, कितना difficult है आज की डेट में पूरे टाइम हंसना. Means like this is a live example कि every time I used to say smile or as if जैसे हम फोटो से पहले नहीं बोलते सेम चीज, तो जितनी बार मैं पार्टिसिपेंट को बोल रही हूँ स्माइल, तो एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और उसके बाद हम वापस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वी आर इनटू अ प्रैक्टिस कि क्योंकि हमें पूरा बहुत सारा एक भार है हमारे सर पे, बहुत सारा हमारा टेंशन है जो यहाँ पर है, जिसके कारण हम अक्सर परेशान होते हैं. तो प्लीज फील फ्री टू डिस्कस योर थिंग्स, योर प्रॉब्लम, योर matters if you are feeling lonely. Fifth point, the most important thing is self-awareness. Knowing yourself, knowing your potential, knowing your capabilities. I simply ask one thing. Out of, I think 61 में मुझे हटा दीजिए, out of 60 people, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को जानते हैं? जानते मीन्स नोइंग योर कैपेबिलिटीज, नोइंग योर पोटेंशियल, नोइंग योर वीकनेसेस, नोइंग योर ड्रीम्स, नोइंग योर पैशन. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके ये चीज कह सके नहीं आया, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल. What analysis you are talking about? I'm just, Priyanka, I'm talking about simple, knowing your strength, knowing your weaknesses. सिर्फ I am not on a technical part, I am on a very simple basic part कि यार मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं अपने आप को मेरे अंदर मेरा पैशन क्या है, मेरी वीकनेस, मेरी कमियां क्या है, या मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज में बहुत अच्छी हूँ. I know myself. अधिकतर yes, Priyanka, you want to say something? Yes, Yes, ma'am. I'm good in cooking, ma'am. I'm good in dancing. I'm good in chatting. I'm good in studying. Okay. And I'm very bad when I hear that somebody is imparting all these. Yes, Mama make yummy food. Oh, great! Wow. Sorry, Where do you ma'am. stay? Where do you stay, Priyanka? You are Ma'am, from? I'm in Ranchi. Okay, अब रांची Ranchi, आना पड़ेगा Jharkhand. खाना खाने के लिए. रांची बहुत दूर पड़ जाएगा खाना खाने के लिए. Okay, and you know your weaknesses, means किस चीज में ऐसा लगता है कि you need some development? Ma'am, anger, self-respect को लेकर के anger, there is too much. When somebody hampers my self-respect, I will be like full of fire. Full of fire. Okay. Can I ask you one question? Yes, ma'am. Sure. You admit your mistakes? या ego ज्यादा है? I admit, but Admit. not always. Okay. 90%. 90%. Okay. You expect a lot? Expectation is high, very much. Expectation is high because the thing is, I tell you one thing, the basic problem with you is कि you are a very emotional person, very loving person, तो आप बहुत दिल से करते हो. आप जब बहुत दिल से करते हो, you expect the same from the person कि वो भी मेरे लिए उतना करे. And प्रियंका, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि तुम मुंह से नहीं बोलती हो. You don't speak from your mouth कि मुझे you want कि सब मैं जब समझ सकती हूँ तो why not सामने वाला? I need that attention. I need that attention. If Yes, I'm you doing need that something, attention. somebody need to recognize it. But that is not happening. See, I tell you one thing. I tell you very one simple question, Priyanka. What is your favorite color? Ma'am, white, black and red. ठीक है, white, black and red. Mine is black and gray. Okay? No white. क्या तुम्हारे लिए ये possible है कि पीछे पढ़कर मेरा फेवरेट कलर व्हाइट करवा दो? नहीं, it's not possible. It's Why your it is taste. not Your possible? choice. Why it It's is your not taste. possible? Because it's your taste, your choice. I can't change it. It is your basic nature to do like Mother Teresa, ये भी करना वो भी करना. It is not my basic nature. So how can you expect me do the same thing for you? And yes, वो भी बिना बोले.
why you want to, why you expect so much? जब your favorite color is white, mine is black, तो कैसे possible है कि हम एक दूसरे को बिना कहे समझ लाएं? Because कहने में self respect आ जाती है, कहने में, see, I tell you one thing, यहाँ पर जितने लोगों ने भी अपनी चीजों को मेरे सामने रखा, they all are very emotional. मतलब इमोशनल तो हर इंसान होता है, कुछ थोड़ा सा. अब I tell you one thing, your basic nature is not गुस्सा. You're telling that anger, it is basic, a very simple thing. As a psychologist, I can say one thing, by seeing your face, it's like अगर मुझे यहाँ चोट लगी और मेरे हाथ को किसी ने दबा दिया, तो मैं एकदम से चिल्लाऊंगी कि तो वो जो दुखती रक्त होती है ना, and it is normally, होता क्या है कि किसी का गुस्सा हम किसी पे निकालते हैं. आपका फ्रस्ट्रेशन का बेसिक रीजन कुछ और है प्रियंका, बट गुस्सा हम किसी और चीज पे निकाल रहे हैं. तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस और फिर सामने वाले के इमोशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर बेसिक नेचर और सामने वाले का बेसिक नेचर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू आर अ डिफरेंट पर्सन, I am a different person, and third one is very different person. और the best part is हम गुस्सा करके अपने, अगर आप प्रियंका अपना पुराना बेसिक नेचर कंपेयर करो 1-2 साल पहले, तो क्या 1-2 साल पहले प्रियंका ऐसी थी क्या? इतना गुस्सा आता था? नहीं. अब स्ट्रेस ज्यादा भी नहीं था मैम. एग्जैक्टली. स्ट्रेस भी नहीं. अब 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो हमें बहुत गुस्सा आने लग गया, हम बहुत परेशान होने लग गए? वर्कलोड बढ़ रहा है. आलिया इज डूइंग सो मच मिस्चिफ. थोड़ा सा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लाइफ इज इम्बैलेंस्ड. I am taking class online. You are entering class online. So everything is like, one bottle now. That is a home. And I love to go out. प्रियंका, this is तो life. जब हम बाहर थे तो we used to say कि अरे मैं दिन भर बाहर हूँ, दिन भर बाहर हूँ, दिन भर बाहर हूँ. अब मैं घर पर हूँ तो मैं दिन भर घर पर हूँ, दिन भर घर पर हूँ, दिन भर. The problem with us is कि हम हमेशा कमियां ढूंढते हैं और दुखी रहते हैं. हम हमेशा सिचुएशन में नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं ना. अब मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए एक पेरेंट्स आए और उन्होंने मुझसे कहा मेरी बेटी सोफे पे बहुत कूदती है, उसको प्लीज आप काउंसल करिए कि सोफे पे ना कूदा करे. एंड my daughter used to do the same now. I tell you one thing, मैंने एक सिंपल लाइन में बोला, मैंने कहा मैम आप 40 साल की उम्र में सोफे पे कूदती हुई कितनी बुरी लगेंगी. ऑब्वियसली वो बच्चे ही करेंगे ना, हम नहीं कर सकते. तो प्रियंका, the best part is accept the situation, and this is the most beautiful time. And I tell you one thing, life is very beautiful. The problem is हम सिर्फ कमियां ढूंढते हैं. We always find कि ये कमी है, ये कमी है. Please count your blessings. You can have my number, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होना तो जैसे आज बात कर रही हूँ वैसे ही 10 साल बाद बात करूंगी. प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट में रहना. और अभी आपने एक चीज बोली मुझसे कि लॉकडाउन था एंड ये भी वो भी, तो इसका जवाब मैं लास्ट में जरूर दूंगी, बिकॉज सुरभि मैम एक्चुअली वांट्स कि मैं इस पॉइंट को उठाऊं. तो मैं ये जाते जाते जरूर इस पॉइंट को रखूंगी कि लॉकडाउन है और ये और वो. इसका जवाब मैं प्रियंका दे के जरूर जाऊंगी. सुरभि समझ गई कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं जाने से पहले जरूर बोल के जाऊंगी. एंड उसके इस सवाल का जवाब कोई और देना चाहता है? Who really know skills, weakness, potentials? Anybody who wants to speak? I know. Yes, Khushi, what are your strengths, weaknesses? Strength, Your passion in life? I empathize with people. Anybody who's Very. around me, I empathize. That is why I don't stay angry for long, because the moment I get angry, after 5 or 10 minutes, I start thinking from their perspective. But my weakness is that I tend to linger on. I tend to I don't come out of my past experiences very easily. That is something which is actually bothering me these days. I tend to overthink a lot. So that's my weakness. I mean, that is something I really want to, work upon. Okay. Overthinking, if I ask, what are your thoughts? Like if you talk about overthinking, तो overthinking में ऐसी क्या चीजें होती हैं खुशी की जो आप सोचते हैं? Okay, I'll be very frank because I am an honest. I'll be very frank. See,
my father expired when I was quite young. So after that, I get this thing, that insecurity in me that, I, I want anybody who's around me, I want them to stay. So if I feel that that person is, going away from me or, something like that, so, it triggers that, overthinking in me. I'll think about, I'll start thinking, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. I, and that insecurity, I want my loved ones to be, around me, stay with me, be honest with me. So this is actually, I'm going through a lot. I might speak to you over phone. I think I could reach out to you. So this is Definitely. something, I actually want to come out of it. This is because it is hampering my studies, my professional life, everything. I'm doing PhD right now, but I'm not able to concentrate on it because all the time I'm thinking. But after attending these two sessions, the morning session and your session, I'm actually questioning myself, and I've started smiling, which I'm really finding it refreshing for me, because otherwise, everybody, my daughter has, started saying, "Mama, you cry a lot these days." So I actually don't want it because my name is Kushi, so I've always been a Yes, of course. very अपने नाम को cheerful बताओ. person. Yeah, I've always been a very cheerful person who would motivate everybody. But due to some something, I'm not able to let go of the past, which I want to do. I mean, if you have any tips on it, please do share. Yes, definitely. I tell you one thing. The whole psychology depends on one statement. That is, this is for all the participants. If you can write it down. Energy flows where attention goes. Energy. You tell me, Khushi, अभी आपको मेरे पास से कैसी एनर्जी, कैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? Yes. पॉजिटिव. मुझसे बात करके आपको कैसा लग रहा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव. ओके. जब आप मुझसे बात कर रहे हो तो हम दोनों पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं. क्या उस समय आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या फादर की डेथ का, या कोई भी ऐसी चीज माइंड में, कोई पुरानी बातें चल रही हैं जब आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो? No, on the contrary, what I'm feeling is that I can overcome everything, and I can be happy again. I can do anything. Means you are I just positive. have to shift my attention to somewhere else. हाँ, that means you are positive. Simple thing is कि हमारा फोकस जब प्रॉब्लम्स पे होता है तो पूरी एनर्जी हमारी नेगेटिव हो जाती है. एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. मेरा अटेंशन अगर किसी पॉजिटिव चीज में है तो मेरी एनर्जी पूरी पॉजिटिव हो जाएगी. अगर मैं ये सोचूं यार किसी को कुछ हो गया तो, सब चले गए तो, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज मैनिफेस्टेशन. हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है. दिस इज द फैक्ट. एंड जब खुशी, एक छोटी सी चीज बिल्कुल ट्राई करना. अभी यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव. आज पूरे दिन इसी खुशी के साथ, हार्डली मैटर्स कि नेक्स्ट में तुम वीडियो ऑफ करके या बैठती हो या ऑन करके बैठती हो, बस एक चीज याद रखना, यू हैव टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस हमेशा, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो. एंड रात के 8, 8:30 बजे तक स्टे लाइक दिस ओनली, एंड देन उसके बाद मुझे टेक्स्ट करना हाउ यू आर फीलिंग. इसका मतलब हम जबरदस्ती, ऑब्वियसली व्हेन वी फोकस ऑन अवर नेगेटिव पार्ट, तो हमेशा मेरे को वही नेगेटिव चीजें याद आएंगी. एंड ऑफ कोर्स वही नेगेटिव चीजें आपके साथ होंगी. बट व्हेन वी फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट, आई टेल यू वन थिंग, बहुत सिंपल सा जेस्चर है. सुबह आप सो के उठो और अपने आसपास देखो, एवरीबडी इज सेफ ना, तो यू शुड थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास सब कुछ है. एंड व्हेन यू आर थैंकफुल टू गॉड यू कैन सी द पॉजिटिविटी अराउंड यू. मुझे ये नहीं मिला से अच्छा मेरे पास तो इतना कुछ. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ और वो सारी चीजें जो आपके पास नहीं है. आप देखना आपके पास ब्लेस्ड वाला ज्यादा होगा. आपको भगवान ने दिया बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ चीजें हो गई होंगी छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में रह गई होंगी. इसलिए खुशी, आज से जस्ट प्रॉमिस टू योरसेल्फ,
Surbhi ma'am? Yes, ma'am. I think there is. I think Pooja ma'am is not audible. Let me check. थैंक यू मेघा, थैंक यू वेरी मच. सो खुशी, स्माइल नहीं जानी चाहिए. जैसे तुम्हारे चेहरे से स्माइल जाने लग जाए ना, मुझसे प्लीज फोन पे बात कर लेना या मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें रिमाइंडर दे दूंगी. I would really like your contact details. I mean, I really need somebody. I'll share my number and please, I tell you one thing, life में एक चीज हमेशा आप लोग याद रखना, सब कुछ आपके अंदर होता है. अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम सब लोग, हमारे सारे ट्रेनर्स यहाँ पर आपको कुछ सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर से. अभी कल शायद कंवलजीत मैम थी, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने एक चीज पूछी थी, एक क्वेश्चन पूछा था सर से कि हाउ इट इज पॉसिबल टू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम, हाउ इट इज पॉसिबल टू रिमेन पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड ऑल द टाइम. तो सुरभि एंड आशा मैम नोज माई स्टोरी, मैं जरूर ये शेयर करूंगी. एंड यस, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल स्टोरी है, तो मैं जस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुरभि मैं आपसे ये बात जरूर शेयर कर रही हूँ. जब लॉकडाउन लगा तो सभी की लाइफ इतर बितर हुई, मेरी भी इतर बितर हुई, लेकिन यस, घर पे बैठकर मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ किया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है. पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, यस, मैं शुरू से पॉजिटिव थी, लेकिन हाँ, मैं आपको एक फीमेल की फोटो दिखाती हूँ. मेरे ख्याल से मैं होस्ट नहीं हूं तो मुझे को होस्ट बना दो. एक फीमेल की फोटो दिखाती हूँ जो मैं एक्चुअल में थी. खुशी, प्रियंका मैम, आशा मैम, श्रीधर सर जो अभी तक मुझसे कनेक्ट हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करें. बाकी लोग भी जो मुझे मेघा co-host, ओके, मेघा तुमने मुझे मैसेज किया तो आई वांट कि अपना वीडियो ऑन करो सो दैट आई कैन सी यू. थैंक यू श्रीधर सर, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू खुशी. मैं अपनी पिक आपको एक दिखाती हूँ. रुको, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. यू कैन सी दिस, आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. यस, ग्रीन साड़ी में भी मैं हूँ, साड़ी में आप हो? यस, साड़ी में मैं हूँ और डेनिम की जैकेट में भी मैं हूँ. आई वर्क 103. It's a drastic change. You utilized that particular time, Yes. COVID time. Yes. Beautiful. Yes. But only one thing, Dr. Pooja, is not changed, that you are still that cheerful soul, right? Thank you, ma'am. Physically, you have, gained a lot of, fitness, but you're still the same by heart, and you see the face, the smile is still the same. Yes, I can say the smile is same, but one thing I can say कि बस the only thing who has changed myself is कि मुझे कुछ करना था, कुछ बड़ा करना था. और because I believe in one thing कि मुझे उस चीज में नहीं रहना था कि यार लॉकडाउन है, जिम बंद है, कोई अवेलेबल नहीं है, मैं क्या It's all करूं. your state of mind, ma'am. So everything Yes, starts from here. Yes. yes. Actually, we need to remove the emotional garbage. That's what we, as a communication faculty, I share with my students. I am dealing with first year students. They are, experiencing a lot of anxiety because of this COVID-19. They are dying to come to the campus, right? Yes. Class nahi attend karni hai, sirf campus aana hai, ma'am, because Campus this is the aana hai. golden period, right? So I tell them, right, अभी जो मम्मा के हाथ का गरम खाना, जब यहाँ पे मेस का बना हुआ खाना खाओगे बेटा, then you're going to value. See, like what you shared, जब घर से बाहर थे, तब we human beings are like that. We don't value what we have. शिकायतें. एंड यू आर द पर्सन, आई थिंक कल आपने ही मैम ये सवाल पूछा था कि कैसे, एंड तब मैंने सोचा था कि मैं आज इस चीज का जवाब दूंगी. एंड सीरियसली मैम, मैंने 5 महीने में, जो भी आप मेरी जर्नी देख रहे हो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 months. इन 5 महीनों में मैंने सिर्फ अपने आप को मोटिवेटेड रखा. मैंने अपने आप को किसी भी माइंडसेट में कि कैसे होगा. एंड यस, ऑफ कोर्स, आई टेल यू वन थिंग, मैं किसी जिम में नहीं गई, मैंने किसी डाइटिशियन को कंसर्न नहीं किया. इट वाज लाइक बस करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना था. बिकॉज, और यस, अपने आप को मोटिवेटेड रख
रखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर. यू शुड हैव दैट फेथ इन योर सेल्फ कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो. एंड यस, यू शुड लव योर सेल्फ. आज यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग वी आर फेसिंग इज वी डोंट लव अवर सेल्फ. हमें अपने आप से प्यार, रिस्पेक्ट, यस, नॉट इवन रिस्पेक्ट, यस, वी डोंट रिस्पेक्ट अवर सेल्फ. वो प्यार ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पीपल से बहुत स्ट्रेस है लाइफ में. स्ट्रेस, आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पर रांची से लोग हैं, भोपाल से हैं, बाहर से हैं, दिल्ली, चेन्नई, सबसे. आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसी कौन सी रोड है आपके शहर में जिसमें गड्ढे नहीं है? कोई भी एक सड़क बता दीजिए कि जिसमें गड्ढे नहीं है. हर सड़क पे गड्ढे हैं. लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अपना लाइक मैं अगर आपको बताऊं, आज मैं जिस वेट पे हूँ उस वेट पे मैं शायद लास्ट टाइम 8th क्लास में रही होंगी, बिकॉज व्हेन आई गेट मैरिड ना, तब भी मैं 90s में थी और बेटे के बाद 103 किलो की हो गई. तो 103 से 67 kgs का ये जो सफर था वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज मुझे अपने ऊपर, थैंक यू सर, इट इज जस्ट माई बिलीफ सिस्टम. मुझे कुछ करना है. It's not, I believe that you are sharing this because it's not only the weight, losing your weight, we can do anything, right? Yes. And Yeah, I in tell you all the areas of life, if we are determined. Yes. I tell you one thing, मुझसे लोगों ने कहा आप दुबले कैसे हुए, क्या खा के दुबले हुए? तो मैंने एक चीज बोली, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है. फर्स्ट इज माइंड, योर पॉजिटिव माइंडसेट कि तुम कुछ करना चाहते हो. सेकंड इज योर डिटर्मिनेशन एंड थर्ड इज योर कंसिस्टेंसी. माइंडसेट, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी. अगर पहाड़ तोड़ के सड़क बनाई जा सकती है तो 103 से 68 में कौन सा बड़ा पहाड़ रखा है? इट इज नॉट वेट लॉस, इट इज द थिंग इज कि हम अपनी जिंदगी में, यस, आई टेल यू वन थिंग, जब मैं अपनी एज देखती हूँ तो इस फोटो में मैं 50 प्लस लग रही हूँ, लेकिन यस, आज मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, आज मैं 40 प्लस हूँ, बट मैं 40 प्लस नहीं लगती खुद को भी. तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि एज इज जस्ट अ नंबर. बस the basic important thing is कि if you are emotionally stable, if you are happy from inside, then you can do any miracle in this world. सिर्फ कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है. एंड दैट इज, सी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो योर सेल्फ. अपने आप को जब तक नहीं जानोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे. हम हमेशा लोगों का इंतजार करते हैं, हम हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कब सोचेंगे? एंड आई टेल यू वन थिंग, हम सब लोग बोलना चाहते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं बोलना चाहते. और मेरे ख्याल से शायद पहली बार इतने सारे लोगों ने वीडियो ऑन किया. थैंक यू वेरी मच, सीरियसली थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मेगा, थैंक यू मैम, थैंक यू निधि. सिर्फ वी ऑल वांट टू स्पीक, वी ऑल वांट टू शेयर आवर फीलिंग्स, बट एक वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. मतलब कैसे, मतलब पता नहीं लोग जज करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. इनिशिएटिव जो लेने की वो थॉट है ना, वही नहीं हो पाता. क्यों? The question arises when we want to speak, क्यों नहीं हम बोलते? And I tell you one thing, कि जो आपका सेल्फ होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन helps to boost your confidence. और सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल helps to handle your life situation. सिर्फ एक चीज है आपकी जिंदगी की, वो है दैट इज योर कॉन्फिडेंस. अगर ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो योर लाइफ इज फिनिश्ड. आज एक दिन बिना नमक के खाना खा के देखिएगा, बहुत ही गंदा लगेगा. तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वेयरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी, वेयरिंग अ ब्यूटीफुल कुर्ता, वेयरिंग अ ब्यूटीफुल टी शर्ट, वेयरिंग अ ब्यूटीफुल शर्ट, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है. हम सुबह से नहा धो के तैयार होके बैठे कि आज हमारा सेकंड डे है, हमारा सेकंड डे है, और हम वीडियो ही नहीं ऑन कर पा रहे. क्यों हम सामने नहीं आना चाह रहे? क्यों हम सामने आके बात नहीं करना चाह रहे? क्योंकि कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ मिसिंग है. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट. लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल, ये 2 जिंदगियां हैं, लेकिन ये दोनों जिंदगी तब हमारी बैलेंस हो सकती है जब वी नो अवर सेल्फ.
यू जो होता है ना, you, that is very important. And I tell you one thing, problem is we always think negative, we always say negative, we always do negative affirmations. If you really want to change your life, if you really want to change your life ना, मैं आपको अपना एक टेक्निक बताती हूँ, बहुत ही स्टूपिड है आई नो, बट अब आप लोगों से इतना कनेक्शन, इतनी अच्छी दोस्ती होगी तो आई कैन शेयर. जब मैं लाइफ में लो होती हूँ ना, जब मैं थोड़ी सी भी, मुझे लगता है मैं थोड़ी सी लो हो गई हूँ, मैं 3 एफर्मेशंस बोलती हूँ अपने आप से, जो मुझे किक मारता है और मैं वापस खड़ी हो जाती हूँ. और बहुत ही मतलब सुनने में बहुत स्टूपिड है, बट मैं बोलती हूँ कि जब मैं थोड़ा भी लो होती हूँ, मैं अपने आप से एक ही चीज कहती हूँ, मैं शेरनी हूँ. फिर मैं सेकेंड टाइम बोलती हूँ, मैं शेरनी हूँ. एंड थर्ड टाइम भी यही चीज बोलती हूँ, मैं शेरनी हूँ. और ये चीज मुझे वापस खड़ा करती है कि नहीं, अभी तो लास्ट, बहुत भागना है, अभी तो बहुत चलना है. एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन होते हैं. आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एज आई एम. अगर हम सिर्फ कुछ देर के लिए, जस्ट क्लोज योर आइज, मैं 3 चीजें आपसे बोलूंगी. आप जितने लोगों के वीडियो ऑन है, क्योंकि जो वीडियो ऑफ है उनसे तो अभी मेरे कनेक्शन ही नहीं बने, तो मैं ना उन्हें समझ पाऊंगी ना वो मुझे समझ पाएंगे. लेकिन जितने लोगों के वीडियो ऑन है, वो अपने आप की अपनी आंखें बंद करें और मैं 3 चीजें बोलूंगी. सुरभि तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो, प्रियंका मैम आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है. अभी You're not audible, ma'am. नाउ आई एम ऑडिबल? ओके. फर्स्ट, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ. आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन born on this earth. First, I am, और obviously male participants, मैं इस दुनिया का सबसे handsome, मैं इस दुनिया का शाहरुख खान हूँ, बस. सेकंड, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीमेल हूँ. थर्ड, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत, ना मुझसे पहले कोई ना मेरे बाद कोई, कैटरीना कैफ, दीपिका, सब मेरे आगे साइड में. मैं बहुत खूबसूरत हूँ. आई एम ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग, एंड भगवान ने जो दिया है वो सब बेस्ट है. मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. एंड जस्ट ओपन योर आइज. मुझे एक्सपीरियंस बताने की भी जरूरत नहीं है, सबके गाल उठे हुए थे, आई कैन अंडरस्टैंड. क्या जब हमारे अंदर अपने आप को किक मारने की कैपेसिटी है, तो ये किक हम क्यों नहीं मारते? Why we want validation from others? कि लोग हमसे जब कहें कि तुम खूबसूरत हो तभी हम खूबसूरत लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड ट्रस्ट मी, मैं 103 किलो की थी तब भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती थी, और आज जब मैं 67 की हूँ तब भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करूं. बट हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, तब लोग कहते थे प्लीज दुबली हो जाओ यार, प्लीज दुबली हो जाओ, और अब लोग कहते हैं प्लीज इससे ज्यादा मत होना, प्लस इससे ज्यादा मत होना. इस चीज से मुझे पता है, जिंदगी में एक चीज समझ आ गई कि दुनिया कभी आपसे सेटिस्फाई नहीं होती. आप जो करते हो ना, दुनिया उसमें कमी निकालती है. तो the best part is you have to be happy. आप किस चीज में खुश हो, that is very important. You have to find your happiness, and the basically simple thing is, बहुत basic example है सब females के लिए, कि पड़ोसन आपके घर आके खटखट करती है, and she asks for paneer and you say पनीर किसके घर में हमेशा रहता है? Because normally it comes on Diwali or Sunday. Paneer is not available all the time, but yes, if we ask for chai patti and chini, it is available all the time. So the simple logic is, जो होगा वही तो दोगे ना. The simple thing is कि जो आपकी लाइफ में आपके पास होगा वही तो आप दूसरे को दोगे. इसलिए पहले वो पॉजिटिविटी, वो हैप्पीनेस, वो लाइफ, वो जिंदगी जिसे कहते हैं ना, वो अपने अंदर लेकर आइए. एंड यू नो, जिससे भी पूछो लाइफ में क्या चाहिए, पैसा की सुकून, नो मैम आई वांट मेंटल पीस. एक्चुअली यू वांट मेंटल पीस, तो उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो सुई तो अंदर ही थी और अंदर ही रहेगी, हम उसे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? यही प्रॉब्लम है कि वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं. निधि, जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए तो यू शुड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए. जब हम कोई वो देखते हैं ना कॉमेडी सर्कस, हम कितना अच्छा फील करते हैं, और अगर बगल से कोई कोविड की न्यूज़ आए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ. हम अपने सामने जो थॉट्स आते हैं ना,
उससे हम अपनी बॉडी को चेंज करते हैं। तो प्लीज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। रादर कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, एक्चुअल फॉलो करती हूँ, दैट इज द ओनली रीजन मैं इतनी चार्ज और पॉजिटिव रहती हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ए ग्रैटिट्यूड। ये मैं अपने बेटे से लेके अपने सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। जिंदगी में अगर शुक्राना आ जाए तो लाइफ में हर चीज आपको अच्छी लगेगी। शुक्राना इज लाइक कि आप जब उठते हो सो के, तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग व्हाट आई हैव इन माय लाइफ। शुक्राना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्सर दुखी होते हैं, ये नहीं मिला, बट एक बार जो है उसको ध्यान से, ये मेरी एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज पूरा दिन अपने घर में भी आप लोगों का फिर 2 घंटे का सेशन है, तो यू जस्ट सिट एट वन प्लेस। ऑब्वियसली आप वीडियो ऑफ करके ही सुनने वाले हैं, वीडियो तो ऑन करने नहीं वाले हैं। तो आप सिर्फ अपने घर के अगल बगल जितनी चीजें हैं ना, वो सब देखिएगा। सोफा, काउच, बेडरूम, किचन में सारी चीजें, सबको अच्छे से देखिएगा। जस्ट कंपेयर करिएगा कि उनका क्या होता है, जो सड़क पर सोते हैं, जिनके पास एक बेडशीट भी बड़ी मुश्किल से मिल जाती है, और उसके बाद भी वी ऑलवेज क्राई कि मेरी किस्मत खराब है। एंड यू नो व्हाट, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हम मांगते हैं। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे बेटे ने आज मुझसे पूछा, सुबह ही पूछा, कि आप इतना भगवान के पास मत्था टेकते हो, तो आप क्या मांगते हो बाबा जी से? मैंने कहा मुझे मांगने की क्या जरूरत है, सब तो दिया है। एंड ये सुबह का ही एग्जाम्पल है, मुझे मांगने की क्या जरूरत है, सब तो दिया है। तो मांगना छोड़ दीजिए, शुक्राना स्टार्ट कर दीजिए। और जब आप शुक्राना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांग के ना कुछ भी नहीं मिलता है। और जब आप मांगते हैं ना, तो आपकी मांगों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती, फिर एक, तो फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज स्टॉप एक्सपेक्टिंग, एंड दिस इज फॉर यू प्रियंका मैम। आज से मेरे सेशन से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, 2 चीजें सीख लीजिए। एक, खुश रहना, और दूसरा, एक्सपेक्टेशन। डिलीट द वर्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर लाइफ। नहीं करनी एक्सपेक्टेशंस। एंड रियली इफ यू हैव दैट हैबिट, खुद से एक्सपेक्ट करिए, खुद से एक्सपेक्ट करिए जिंदगी में। एंड ट्रस्ट मी, मैं हर महीने अपने टारगेट सेट करती थी, पूरा एक चार्ट बनाती थी और किचन में चिपका देती थी। जितनी बार किचन में काम करती थी, उतनी बार अपने टारगेट्स को सेट करती थी कि यार ये मुझे अचीव करना है, ये मुझे अचीव करना है। ये 36-37 की केजीज की जर्नी, और 5 महीने और 3.5 घंटे का वर्कआउट। एंड ट्रस्ट मी, नो रोटी फ्रॉम द लास्ट 5 months, नो रोटी, नो चावल, कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, कोई मतलब कहते हैं लोग कि कैसे, तो ना रोटी खाई, ना चावल खाया, कुछ नहीं किया। इन 5 महीनों में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया कि ये मेरा पागलपन है, ये मुझे पाके दिखाना है, बस यही पैशन। एंड ट्रस्ट मी, हम किसी भी पोजीशन पे क्यों ना बैठे हो, कोई तो एक चीज होगी आपके अंदर जो एक फायर का काम करे कि यस आई वांट टू डू समथिंग इन आवर लाइफ, कि हम जब जाएं तो लोग याद करें कि कुछ बड़ा इंसान आया था और बड़ा इंसान गया। तो ट्राई टू फाइंड आउट दैट पैशन, try to work on yourself rather on complaining कि ऐसा वैसा तैसा। No, it's you। कुछ नहीं करना है। हर आदमी दुखी होता है, हर आदमी परेशान होता है, हर आदमी इमोशनल अनस्टेबल होता है, बट कोई बात नहीं। मैटर ये नहीं करता आप कितनी बार गिरते हो, मैटर ये करता है कि कितनी जल्दी अपने कपड़े झाड़ कर आप दोबारा फील्ड पर आकर वापस लड़ने के लिए खड़े हो जाते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। वो कॉन्फिडेंस है, जस्ट लव योर सेल्फ द वे यू आर, और ट्राई टू फाइंड आउट योर पैशन। एंड ट्रस्ट मी, हमारा फोकस अपनी जिंदगी की परेशानियों में है, हमारा फोकस इस चीज पे है ही नहीं कि हम जिंदगी में क्या चाहते हैं। शाम को समय निकाल कर बैठ कर एक बार तो पूछो अपने आप से, क्या है पैशन, मैं पैदा किस लिए हुई थी, मुझे बड़ा क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे लिए सबसे स्टूपिड डे तब था जब मुझे योगा डे के दिन एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया। मतलब जिंदगी में मतलब नीचे जो बंदी नहीं बैठ सकती थी, वो उसे योगा डे के दिन स्पीकर बुलाया गया। मुझे फिटनेस के लिए बोलने के लिए बुलाया जाता है। तो मैं इससे एक चीज समझ आ गई, इंसान कुछ भी कर सकता है, बट यस, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस एंड योर पागलपन। आपका पागलपन आपको कहीं पर भी पहुंचा सकता है।
बट अगर मैं उस जर्नी में, एंड ट्रस्ट मी, उस जर्नी में किसी भी मोमेंट गिर जाती या इमोशनली अनस्टेबल हो जाती तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाती. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये जो प्रॉब्लम शब्द है ना, प्रॉब्लम्स, इसको डिलीट कर दो. प्रॉब्लम तो सबकी जिंदगी में है. कोविड था तो प्रॉब्लम, स्कूल खुलने लग गए तो प्रॉब्लम कि बच्चे बेचारे सेफ हैं कि नहीं है. तो कमी तो हर चीज में है. इस प्रॉब्लम की जगह ट्राई टू यूज द वर्ड चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, बट हमारी गलती क्या होती है, हम सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच को रखते हैं. अपनी सोच के हिसाब से अपनी परिस्थितियों को रखिए ना, क्योंकि जब बदलती है ना नजरें, तभी बदलते हैं नजारे. अगर नजारे बदलने हैं तो नजरिया बदलना बहुत जरूरी है. एंड द प्रॉब्लम इज कि हम नेगेटिव चश्मा लगाकर, नेगेटिव ही तो दिखाई देगा. काला चश्मा लगाओगे तो काली दुनिया, सफेद चश्मा लगाओगे तो सफेद दुनिया, कुछ भी नहीं लगाओगे तो पूरी सफेद चमाचम दुनिया. तो इट डिपेंड्स ऑन योर आईज. हमारी आंखें खराब हो चुकी हैं, दुनिया खराब नहीं हुई, दुनिया तो ऐसी ही थी. किसके पास इतना टाइम है कि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को, आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके इमोशंस को समझे? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. किसी के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है. हम सुन पाते हैं किसी की साइलेंस को, हम समझ पाते हैं किसी को नहीं. यहां पर सिर्फ एक चीज है, ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ, इनर यू. खुद को समझना. हम बहुत चिल्लाते हैं, हम बहुत गुस्सा करते हैं, हम बहुत स्ट्रेस करते हैं, और आपको पता है प्रैक्टिकली गुस्सा करके, चिल्ला के हम कभी किसी को नहीं बदल पाएंगे. क्योंकि प्रैक्टिकली देखो तो सामने वाला वही करता है जो उसको करना है. आप चिल्ला के कभी किसी को नहीं बदल पाओगे, क्योंकि उसको जो करना है वो वही करना है. क्योंकि ये तो हम पे भी लागू होता है, हमें जो करना है हम भी तो वही करते हैं. हम सामने वाले का ज्ञान जरूर लेंगे, लेकिन करते हम वही है जो हमें करना है. तो वेरी सिंपल फैक्ट, देना ज्ञान क्यों, अपने ऊपर लागू करो. पीस ऑफ माइंड. एंड ट्रस्ट मी, आप दो चीजों से बने हो, आपकी बॉडी और माइंड. योर बॉडी एंड योर माइंड, इन दोनों को अगर आप स्टेबल और परफेक्ट रखोगे ना, आपको दुनिया बहुत अलग तरीके से दिखेगी. ये दोनों चीजें जब परफेक्ट होंगी तो आप परफेक्ट बनोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर बॉडी एंड योर माइंड. मन को शांत रखना, obviously meditation is the only solution. Sleeping time, water intake, your diet, your one thing जो आपको बहुत पसंद है, your hobbies, ये आपको बॉडी को रिचार्ज रखता है. 24 घंटे में से कितनी देर हम अपने आप को देते हैं? अभी सर ने पहले वाले सेशन में कहा था मी टाइम. प्रैक्टिकली हम 24 घंटे में से कितनी देर अपने आप को देते हैं? 1 hour. 1 hour every day. 1 hour every day. तो खुशी क्या करते हो 1 hour में? I do exercise and meditate. Mine is 1.5 hour. That's Okay. what I do. Okay. I give around 3 hours. 3 hours. Very good, Yeah. मैम. तो पॉजिटिविटी दिखती है. तो खुशी जो आप 1 घंटा देते हो, वो पूरा फोकस अपने ऊपर होता है या एट द सेम टाइम अगल बगल चीजें चलती रहती हैं? Just on me. I do yoga, I do exercise. That is for my fitness. And after that, I meditate. That Okay, very good. 1.5 is exclusively for me. I don't Okay. think anything during that time. प्रियंका, आप नहीं देते? Didn't get time, ma'am. ऐसा क्या होता है हमारे 24 घंटे की जिंदगी में कि you don't get time? Ma'am, actually, my family is like a politician, businessman, working. I'm in a joint family, ma'am. I have to look after all the stuffs. ओके, अच्छा, ठीक है. अगर प्रियंका कल से ये आदेश आ जाए भगवान की तरफ से कि हमारे पास अब 1 घंटा कम मिलेगा, हमें 23 घंटे मिलेंगे. मैम, Despite of years, hours, पहले आप हेल्दी थे, अब आप दुबले हो गए. मैं पहले बहुत दुबली थी, अब थोड़ी हेल्दी चबी हो गई. तो हम दोबारा पतले नहीं हो सकते क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है. अरे मैम, ये मत बोलो. Ma'am, I was more beautiful, but अब नहीं हूँ.
नहीं, सी आई टेल यू वन थिंग, ब्यूटीफुल आप पहले भी थे, ब्यूटीफुल आप आज भी हो, क्योंकि चेहरे से, जैसे मैम ने कहा था ना, चेहरे से कोई ब्यूटीफुल नहीं होता, सोल से होता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये जो भी आपने एक चीज कही ना, अब नहीं हो सकता। बस मैम, अगर मुझसे कुछ सीख सकते हो ना, या मुझसे कुछ ले सकते हो एज अ दोस्त, तो एज अ दोस्त एक ही चीज सीखना, मैंने अपनी लाइफ में ना इम्पॉसिबल वर्ड कभी नहीं रखा, जो चीज करनी है वो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। I'll try. नहीं 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 नहीं, ट्राई शब्द नहीं, एक बार दिल से बोल दो, करके दिखा दूंगी, 6 महीने में पूजा, जैसी तुम हो वैसी बन के You दिखा know, दूंगी। the moment you start thinking about yourself, everybody starts accepting you that way. I Yes. wake up at 5:30 and I would, I would not go out of my room, that would be closed, but I would do whatever I had to do. Earlier, I was doing art of living as well. So we used to do all the sadhana and everything. That time we used to wake up at 5 because it would go from 5 to 8, 3 hour session. But now it's not possible for me. I mean, getting too much. But initially everybody, had some reservations. Say, acha, we are getting disturbed and blah, blah, blah. But then, they accepted me. They accepted this. Okay, she has to do it. And she will. So, for Priyanka, I'm talking about, you just need to have that thing. This is something that you are doing for yourself. So, see, I actually got diagnosed for cancer. So my doctor told me, if you don't exercise, we would have to go for, further treatment, chemo and blah, blah, blah later on. So, at that time, it was actually a awakening call for me. I have to get back, I have kids, I have to look after them. So I made it a point, whether I eat or I don't eat, but I do it. It is very important. And I tell you one thing, Priyanka, I tell you one thing, छोटी सी चीज बता रही हूँ, हम 24 घंटे बहुत कुछ करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, सब करते हैं, लेकिन हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता। बट और एट द एंड ऑफ द डे, कहीं ना कहीं हम वो फ्रस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं कि मैं दिन भर भाग रही हूँ, मैं दिन भर कर रही हूँ, मैं अपने ऊपर टाइम नहीं दे रही हूँ, मैं अपना ध्यान नहीं दे रही हूँ। कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो थॉट प्रोसेस, वो टेंशन, वो कहीं वो परेशानियां, वो एंगर, सब कुछ हमारे अंदर आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे तुम्हारा बेसिक नेचर चेंज होता जा रहा है। तो अगर थोड़ा सा समय, क्यों कहते हैं सबको एक ब्रेक की जरूरत होती है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दोगे ना, थोड़ा सा, then you will feel that thing कि मैं खुश रहने लग गई हूँ। आज you have everything in your life, but something is missing ना। You have a very good professional life, very good family life, everything is there, but क्या मैं अंदर से खुश हूँ? And this is the most important question. This is the most important question you should ask yourself. क्या मैं खुश हूँ? अगर नहीं हो ना, तो try to find out. Try to find out कि वो खुशी कैसे आती है जीवन में. But it is very important. एक लाइफ मिली है यार, एक लाइफ. You never know कल चले जाना है. तो जब तक हो तब तक जी के तो जाओ. और प्रियंका, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है. कहते थे रोटी के बिना आदमी मर जाता है, मैं 6 महीने से लॉकडाउन में तो गिफ्ट मिल गया मुझे हार्ट प्रॉब्लम का. My husband, due to COVID, he was admitted in ICU, and my in-laws, both the in-laws, he was also hospitalized. My brother-in-law was hospitalized, and this made me demotivated or a negative person, you can say. Now So they all after are. that only I can say that nothing is possible or everything is impossible. See, now they are fine now. They came back home, but still they don't have that immunity which was earlier. But still ना, आ गए घर, सब अच्छे हैं ना. तो back at work. Exactly. You should see the positive angle ना, कि जहाँ इतने लोग निकल लिए, यहाँ पर at least my family is there with me. I should be, thankful. I should be positive in this situation. Yeah, this I can say, correct. मीन्स अब से हमें हमेशा लाइफ देती है कि हम दो एंगल से सोच सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमेशा मिलता है, बट हम बस नेगेटिव की तरफ झुकते हैं कि ये ऐसा हो गया. दोबारा खड़े होना, लाइक मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी 25 जनवरी को स्टार्ट की. 1 जनवरी को मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हुए. उनके एक्सपायर होने के 24 दिन बाद मैंने सोचा नहीं यार, वो इतने फिट थे, इतने सब कुछ थे, वो एक्सपायर हो गए. अब ऑब्वियसली मदर लॉ 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी. मुझे लगा नहीं यार, मम्मा पापा दोनों चले गए, अब अपने आप को फिट रखना है. बस यही सोचकर मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी. उनके जाने से ऑब्वियसली सब टूटे,
क्योंकि मैं काफी अटैच थी अपने लॉस से। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मैं अगर फिट नहीं रहूंगी, 103 किलो की हूँ, कोई भी बीमारी लग सकती है, मोटापा सबसे बड़ी बीमारी होती है ऐसा कहते हैं, तो मैंने अपने आप को उससे फाइट किया। तो लाइक आप यू हैव टू सर्च फॉर दैट थिंग। जो मैंने सिंपल कहा ना कि जिस दिमाग से देखने की कोशिश करोगे वही आपको दुनिया दिखाई देगी। तो प्लीज इमोशंस, फीलिंग, एंगर, खुशी, पीस ऑफ माइंड, ये सब हमारे अंदर है। हम अगर सुबह उठते हैं और बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो जाते जाते शाम होते होते सर दर्द शुरू हो जाता है। नहीं, आई एम कंप्लीटली फाइन। कैसे हो? एक नंबर, मस्त। मुझे हमेशा सुबह मैसेज करती तो मैं कि और क्या हालचाल, एक नंबर, कैसे हो आप, निहायती खूबसूरत। आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 5 to 6 years, शायद 6 साल हो गए सुरभि के साथ मुझे। मैं हमेशा, और निहायती खूबसूरत हो तो मतलब पतली वतली तो अभी हुई, जब मतलब अच्छी खासी थी तब भी निहायती खूबसूरत ही वर्ड बोलती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ। आई एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और यही मुझे ताकत देता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आई हैव टू बी स्ट्रांग टू फाइट, टू डील विथ एवरी ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। सो सी इनर यू, फेसबुक फ्रेंड्स खड़े नहीं होंगे, इंस्टा फ्रेंड्स हमारे लिए साथ में खड़े नहीं होंगे। अगर हमें परिस्थिति, सिचुएशन से कोई चीज निकाल सकती है तो वो हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका बिलीफ सिस्टम आपको आगे निकाल सकता है। तो प्लीज मेरी आप सबसे इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, और जाने से पहले मैं एक बार सबके जिनसे मैंने कनेक्ट किया और जिसको मैं थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हूँ, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हूँ, Ma'am, I want I think I have to be back on 45 kg after seeing you. नहीं हो जाएगा मैम, इट विल टेक ओनली 6 months, मतलब 5 महीने में तो पार हो जाओगे, मत चिंता करो। I just want you to please switch on your videos, and I just want a wonderful smile. निधि मैम, गगन मैम, प्लीज एक अच्छी वाली है, स्नेहा मैम, मतलब मुझे ये फीलिंग आएगी सीरियसली कि हाँ आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट किया। थैंक यू साधना मैम। यस मैम, I have seen you. I mean, you're showing the photographs to the people, but I have actually seen you. And when I met you after your transformation, I was actually awestruck. When I met you at the Oriental School, yes, I thought yes. I've seen you somewhere. Then I said, "Oh my God, this is Pooja." You know, it was like I couldn't believe it that it's you. Literally. Thank you, ma'am. Wonderful. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, लव यू मैम। एंड आई टेल यू वन थिंग, जाने से पहले 2 चीजें आप लोगों से जरूर बोल के जाऊंगी। और सबसे पहले तो सीरियसली सबके लिए थैंक यू। वीडियो ऑन किया तो स्माइल इज कंपल्सरी, सिर्फ वीडियो ऑन करके नहीं बैठना है, स्माइल। गगनदीप मैम इतने गुस्से में मत देखो, बस 5 मिनट और लूंगी, अच्छी वाली स्माइल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लाइफ में बेसिक चीजें याद रखिएगा जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कर्मा एंड नियत। कर्मा एंड नियत, ये 2 चीजें लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वन इज कर्मा एंड वन इज नियत। अगर ये 2 चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग है ना, तो लाइफ में कभी आप कहीं पीछे नहीं हटोगे। एंड जब बहुत डिप्रेस हो जाओ, जब बहुत दुखी हो जाओ, जब बहुत परेशान हो जाओ और ऐसा लगे यार अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में, समझ ही नहीं आ रहा, देन एक चीज, अपनी आंख बंद करके जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर वन लाइन। मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जो यहां तक लेकर आया है ना वो आगे भी लेके जाएगा। जो आपको यहां तक लेकर आया है ना वो आपको आगे भी लेके जाएगा। जैसे एक दुकान में सिर्फ मालिक को चिंता होती है ना कि उसको सैलरी निकाल रही है, नौकर को कोई टेंशन नहीं होती है, वो तो आता है अपना काम करता है, शाम को चला जाता है। उसी तरीके से वो मालिक बैठा है और उसने सब कुछ करना है, बस उस पर छोड़ दीजिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ 2 लोगों पे विश्वास कीजिए, एक उस पे और अपने आप पे। आप लाइफ में कभी नहीं हारोगे, सच बता रही हूँ। एंड आई एम वेरी स्पिरिचुअल, और मैं इस चीज में मानती हूँ, और शायद ये पॉजिटिविटी मेरे अंदर इसीलिए है बिकॉज आई बिलीव कि हाँ ही इज देयर, एंड इफ ही इज देयर ना,
कुछ बुरा नहीं होने वाला, बस अपने आप से प्यार करो और एक जिंदगी मिली है, एक खूबसूरत जिंदगी। और सीरियसली ऐसा नहीं है कि सेशन है तो मैं इतनी हाँ 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 कर रही हूँ, मैं हमेशा ही इतना खुश और हाँ 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 करती हूँ, बिकॉज आप जैसे होते हो ना वही चीज अपने आसपास आपको ऑरा बिखेरते चले जाते हो। और हमारे पास बहुत कुछ तो करने के लिए है नहीं, अगर हमारे खुश होने से 2 और लोग खुश हो जाएं तो यही बहुत बड़ी चीज है ना। तो प्लीज स्प्रेड दैट हैप्पीनेस जो आपके पास है, ये जो खुशी है ना हल्की सी जो चेहरे पे आ रही है। श्रीधर अपने दोस्त सर अपने दोस्त को भी सुना रहे हैं कि हाँ तुम भी थोड़ा सा खुश हो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निधि मैम, थैंक यू मेघा मैम, थैंक यू श्रद्धा मैम, थैंक यू खुशी मैम, थैंक यू आशा मैम, ऑब्वियसली आप तो थे ही मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू एवरीबडी। इतने लोगों ने वीडियो ऑन किया और इतने लोगों ने कनेक्ट किया। यू कैन हैव माय नंबर एंड ट्रस्ट मी, whenever you need me, I am always there. WhatsApp कर देना बस, हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। और प्लीज, मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई थी, मैं कोई सेशन लेने नहीं आई थी, मैं सिर्फ जीवन की एक चीज सिखाने आई थी कि एक लाइफ मिली है, कुछ बड़ा करो। रोने धोने जब नर्क में पहुंच जाएंगे तो रोना धोना ही है। आज जब यहाँ पर है ना तो लाइफ को अंत तक जीना, अंत तक। और प्लीज कभी ये मत बोलना मैं हार गया, लास्ट दिन उसी दिन हारना जिस दिन ऊपर जाना। और ट्रस्ट मी, जितने लोग आपके घर के बाहर खड़े होंगे ना, दैट विल डिसाइड कि आप जिंदगी में हारे हो कि जीते हो। क्योंकि पैदा हुए तो 3-4 लोग आए थे, डिपेंड करता है मरने पे आपके कितने लोग आएंगे। और ऑब्वियसली कि आपके न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की न्यूज बन गए तो आप तो समझ लीजिए आपने जीवन पार कर लिया। कुछ बड़ा करिए, छोटा मत सोचिए। 95891 46,000 95891 95891 46,000 46,000। खुशी, प्रॉमिस मी आज के बाद से ये चेहरे पे स्माइल नहीं जाएगी, नहीं तो तुमने मुझे मैसेज किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। ठीक है? I'll come to, I guess you are in Bhopal, ma'am. Yes, you are from Bhopal? No, I am from Delhi, but I am doing my PhD from Bhopal, so I'm planning to come. So I'll definitely come over and meet you. Please, please, anytime. And Priyanka, गुस्सा नहीं करना, प्रॉमिस में गुस्सा नहीं करूंगी। सेक्शन दिख रहा है, मैं भोपाल में रही हूँ, खजूरी कॉलोनी रोड जिसमें वो क्लेम करता है कि प्रैक्टिकल दिख रहा है, क्योंकि सर टाइम टेबल ही नहीं मैच करता, की करिए फिर से तो लेक्चर आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई नो काफी मतलब सबको इतना मुश्किल से इतना हंसाया, सबके गाल दर्द हो रहे होंगे। मुझे आप सबसे मिलके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। एंड जिस तरीके से अभी श्रीधर जिस सर जा रही हो, अभी एक बाय मत करिए पहले, मतलब थैंक यू तो मुझे कर लेने दीजिए। आई वांट कि नेक्स्ट सेशन में भी इतने ही एनर्जेटिक रहिए, इतनी ही अच्छी स्माइल रखिए, बस स्टे पॉजिटिव। आपको देखकर बहुत सारे लोग हंसते होंगे और बहुत सारे लोग खुश रहते होंगे। जस्ट लव योरसेल्फ, दैट्स इट। Thank you very much. Thank you, Sage Group. Thank you, Priyanka ma'am. Thank you, Surbi ma'am. Surbi, I love you so much. Oh, please हाथ में जोड़ो, खूब खुश रहो। Thank you very much. अब तुम बोलो। मैम थैंक यू, मतलब हमेशा की तरह आई एम स्पीचलेस। जब भी मैं आपका लेक्चर सुनती हूँ, आई थॉट कि मैं आई वाज हेवन, आई डोंट नो व्हाई, बट your words are so motivating and really ma'am, always an inspiration, seriously. The day one when I met you in VNS college, I asked you how are you ma'am, and you said nihayat hi khoobsurat. So I was shocked what she's saying, but later on, yeah, I understand what's your nature. So ma'am, really love you once again, and thank you so much for making my participants familiar with me. मुझे नहीं पता था मेरे participants, they all are so much beautiful and they all are seniors. I think I am very much junior. And it's true that I'm just 3 to 4 year experience in teaching, so I'm quite young. So ma'am, thank you for making this session so interactive, so good, wonderful, marvelous, and no words other than this. Seriously, thank you so much ma'am. And all the participants, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के। आज I think this is the first session जिसमें मैंने इतना interactive session देखा। आज का दिन ही बहुत अच्छा था, मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा सेशन, एंड होप इवनिंग में भी आप सभी लोग इतने ही एनर्जेटिक रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड प्रियंका राठौर मैम, प्लीज propose a vote of thanks to Pooja ma'am. Priyanka ma'am, please. थैंक यू सो मच मैम। रियली कि आपको मतलब कैसे मैं आपका सेशन कंक्लूड करूं, बस लेकिन एक चीज बहुत अच्छी फिट होगी आपके लेक्चर के बाद,
आपने जितनी भी चीजें बताई ना, उनके लिए बस एक ये लाइन है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर लोग इसको, और ये आपके लेक्चर में ना बिल्कुल फिट होती है, मतलब जितने आपने लाइफ के मंत्रास बताए ना, वेरी कीवर्ड थे, बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन उन्हें क्या कहना चाहिए कि हम इनकलकेट करने में इतना टाइम क्यों लगा लेते हैं लाइफ में। आपने इतनी अच्छी तरह और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ आप चीजें बताते हो, तब लगता है कि हाँ यार ऐसा भी कर सकते थे और वो सिचुएशन उस टाइम कुछ अलग रहती। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन सो वंडरफुल, सो इंटरेक्टिव, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। उन्होंने इतना अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एंड नाउ वी आर एबल टू सी देयर फेसेस, टू दे हैव शेयर्ड देयर व्यूज, देयर एक्सपीरियंसेस। तो उनकी आवाज और उनको देखने का मौका बहुत अच्छी तरीके से मिला आपके सेशन में। तो थैंक यू सो मच on the entire on the behalf of entire Sage Group and SIRT Pharmacy. I would like to show my appreciation from deep of my heart that आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन लिया, इतना अच्छी तरीके से आपने लोगों को कंफर्टेबल बनाया कि वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ भी आपके साथ शेयर करने में बिल्कुल भी वो नहीं हुए, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कंफर्टेबल रहे। और मैंने मैम का नंबर भी शेयर किया हुआ है यहाँ पर सभी के साथ। तो जो भी पार्टिसिपेंट मैम से पर्सनली भी इंटरेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यू कैन यूज हर नंबर, और फीडबैक लिंक इज ऑल्सो शेयर्ड इन द चैट बॉक्स। तो थैंक यू सो मच मैम। और मैम नेक्स्ट सेशन के लिए वेट रहेगा, नेक्स्ट सेशन के लिए आप कब आ रहे हो? Madam, 1 second, madam. Yes. Madam, if you have the YouTube links by your name and FB page. Pooja Mehta. If you search my channel, Pooja Mehta, it is mentioned there. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. We had a wonderful. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Thank you so much, ma'am. So much. Nice day, ma'am. So I think here we have to take some break till 3:30 p.m. At exact 3:30, there will be the last session of day 2 of this online FDP program. So I request the participant to please stay connected with us for the next session, for the next last session. So stay connected with us. Thank you.